Yes, friends. Today we discuss the force on a moving charge. Force on a moving charge. Moving charge in a magnetic field. Magnetic field. Today we discuss the force on a moving charge in a magnetic field. Suppose we can suppose a positive charge Q is moving in a uniform magnetic field. A field is placed along x-axis, take along x-axis and with a velocity v. Velocity of the moving charged particle. Here we have take a positively charged particle. Move with a velocity v by making an angle theta. Now the component of v is resolved, velocity resolved. This one is v cos theta and this one is three axes are perpendicular to each other. This component is v sin theta. When a charged particle having charge q moving with a velocity v in a magnetic field b, then velocity of the moving positively charged particle is resolved into two components, v cos theta along the direction of magnetic field, v sin theta that is perpendicular to the direction of magnetic field. Now here we can say the magnetic force that is proportional to magnitude of magnetic field and magnetic force that is proportional to charge and magnetic force that is proportional to the component of the velocity v sin theta. Why we have not take the v sin cos theta? क्योंकि ये जो कंपोनेंट है v cos थीटा जो कंपोनेंट है ये v sin थीटा. यहाँ पे जब मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ये राइट एंगल होते हैं. राइट एंगल मीन्स ये आपके पास जो डायरेक्शंस होगी मैग्नेटिक फोर्स की दैट इज गिवन बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड. और यहाँ पे ये राइट एंगल होते हैं और राइट एंगल में थीटा 90 होता है, कोस 90 जो होता है वो जीरो बन जाता है. तो दैट्स व्हाई वी हैव टेक द वेलोसिटी कंपोनेंट कौन सा v sin थीटा. तो मैग्नेटिक फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये आपका चार्ज ऑफ द मूविंग पार्टिकल एंड वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट v sin थीटा. The component of velocity, perpendicular component of the velocity, so perpendicular component of the velocity is v sin theta. When we compare these about two equation f q v b और ये sin theta, we can write f is equal to q k q v b sin theta. If all the physical quantities are unity, then we can say k is equal to 1. Now here f is equal to q v b sin theta and the direction of magnetic force is given by the vector product of velocity and magnetic field. Is it right? Here we can write f is equal to q v vector cross b vector and that is the magnetic Lorentz force.
ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है साइड वे। इट हैव ए टेंडेंसी टू डिफ्लेक्ट द चार्ज पार्टिकल। जो मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंज फोर्स है ये चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है। तो दैट इज द एफ क्यू। दिस कैन बी रिटन एज हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, और वी और बी के बीच में जो एंगल है वो आपके पास थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, मूविंग चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है? थीटा। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है क्यू वी बी साइन थीटा, सबसे ज्यादा आपका रोल प्ले करेगी एफ क्यू वी बी साइन थीटा। if we can say if q is equal to 1 coulomb, velocity is 1 meter per second, okay, and charge particle move right angle to the magnetic field, theta is 90, then what we can say, then we can say is f is equal to b। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम मोशन ऑफ द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल में हमारे पास एक रिलेशन आई एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इफ यू अज्यूम द चार्ज पार्टिकल मींस 1 यूनिट ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then we can say the magnetic field that is numerically equal to magnetic force। कि मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड that is numerically equal to what? Magnetic field is numerically equal to magnetic force when a charge, what charge? When a charge of 1 coulomb is moving with a velocity of 1 meter per second right angle to the uniform magnetic field, और ये आपके पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आई, ये मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? एफ। नाउ राइट एंगल के लिए थीटा 90, तो वी कैन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज नाउ एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। व्हाई? कि थीटा इज 90। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन थीटा इज 90 sin 91, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। हियर व्हेन थीटा इज 90 sin 91, F is equal to QVB, and B magnetic field F is equal to QV. Now in SI system, force is what? Force is Newton, charge is Coulomb, velocity is meter per second, or that is Tesla। यानी unit of magnetic field is Tesla। How we can define the unit of magnetic field? 1 Tesla। Now 1 Tesla that is equal to what? 1 Tesla, 1 Newton, 1 Coulomb, 1 meter per second। So 1 Tesla, the magnetic field is said to be 1 Tesla when a positively charged particles of 1 Coulomb is moving with a velocity 1 meter per second, okay, in uniform magnetic field। यानी कि the magnetic field is said to be 1 Tesla when a positively charged particle of 1 Coulomb moving with a velocity 1 meter per second right angle। किसके right angle? Right angle to the magnetic field when a force of 1 Newton is exerted। when a magnetic force what? 1 Newton of magnetic force। Now this one is the SI system। how you can define in CGS system? Now CGS system, F is equal to what? QVB। F is equal to magnetic field, that is equal to what? F QV। now here force is 9, और चार्ज पार्टिकल वही 1 कूलम को यहाँ पे सीजीआर एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। यहाँ पे होता है 1 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, 1 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज।
इंटू में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. So how we can determine? Now how we can establish the relation between, and that is equal to Gauss. 1 Gauss. So what is the relation between Tesla and Gauss? Now here Gauss is what? Gauss is 1 dyne by 1 ESU, electrostatic unit of charge, into 1 centimeter per second. ये 1 Gauss, ये 1 Tesla. How we can establish the relation between Tesla and Gauss? तो 1 Tesla, 1 Newton means 10 to the power 5 dyne. 1 coulomb में how many? 1 coulomb में होता है 1/10 ESU of charge into में 1 सेंटीमीटर ये पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो दैट मीन्स दिस कैन बी 10 की पावर 6, ये आपके पास डाइन, और यहाँ पे ESU 1 ESU 1 सेंटीमीटर दैट इज व्हाट? ये आपके पास होगा 1 मीटर में 10 की पावर व्हाट? 10 की पावर नहीं 1 सेंटीमीटर. दिस कैन बी रिटन एज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये 10 की पावर 5 1 ESU, ये 10 की पावर 5 न्यूटन हो गया, और ये 1/10, ये आपके पास होगा 1/10, और ये 10 की पावर -5 डाइन, सॉरी 1 न्यूटन इज 10 की पावर 5 डाइन, और यहाँ पे बन गया 1/10 ESU. तो यहाँ पे ये आपके पास मीटर है, तो 1 मीटर में ये बन गया 10 की पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यहाँ पे सॉरी ये आपके पास आ गया 10 की पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 4 ये डाइन, और ये 1 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इंटू में 10 की पावर 2 ऊपर कैंसिल सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज 10 की पावर 4 गॉस. तो 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस. फिर ध्यान से सुन लीजिए, 1 टेस्ला ये होता है, 1 गॉस ये होता है. टेस्ला और गॉस में 1 टेस्ला 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन, 1 कूलम 1/10 ESU ऑफ चार्ज होता है, 1 मीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये 10 की पावर 6 डाइन, 1 USU ऑफ चार्ज, 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर कन्वर्टेड, और 1 टेस्ला दैट इज इक्वल टू पॉइंट टू बी नोटेड 1 टेस्ला दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस. दैट इज द रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस. टेस्ला एंड गॉस इज व्हाट? Tesla and Gauss is the unit of magnetic field in SI and CGS system respectively. Tesla SI system में यूनिट है, और Gauss टेस्ला SI सिस्टम में, और Gauss आपकी होगी CGS सिस्टम में. और रिलेशन आपने टेस्ला और Gauss में कि 1 टेस्ला जो है वो 10 की पावर 4 1 टेस्ला 10 की पावर 4 Gauss न्यूमेरिकल में यूज होगा. तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड Gauss. अब जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड QVB sin थीटा. इस पे स्पेशल कंडीशन आती है. फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूव आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. When the charge particle means either parallel means same direction of magnetic field, or anti-parallel means opposite direction of the magnetic field. When the charge particle is move either parallel or anti-parallel, तो पैरेलल और एंटी पैरेलल में थीटा या तो 0 होगा या 180 होगा, और बोथ केस में साइन थीटा 0 होगा. तो F is equal to 0 means no magnetic force is exerted on the charge particle when the charge particle move either parallel or anti-parallel in the uniform magnetic field. यदि चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में
या तो पैरेलल जाता है या मैनीफील्ड के एंटी पैरेलल, तो वो चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्टेड नहीं होगा। ओके, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज दैट कि when theta is 90, if the charge velocity of the charge particle is right angle to the मैग्नेटिक फील्ड, यदि वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और राइट एंगल होगा तो दैट विल बी व्हाट, F इज इक्वल टू QVB sin 90, और ये आपके पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड, this is the expressions for the maximum magnetic force experienced by the moving charge particle, maximum magnetic force experienced by the moving charge particle when the velocity of the charge particle is right angle to the uniform magnetic field. Second is what, ये आपके पास था मैग्नेटिक फोर्स। अब डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स, हाउ वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शंस। फ्लेमिंग, एक होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। In Fleming left hand rule, this is the left hand. इस left hand rule में this one is the thumb, this one is forefinger, this one is central finger. Thumb, forefinger, central finger. Thumb, forefinger, central finger. They are right angle to each other. इसमें four जो thumb है, thumb that represent the directions of magnetic force. Magnetic force आपका four finger that represent the directions of magnetic field, और आपके पास central finger that represent the directions of velocity of moving charge particle, velocity of moving charge particle. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जैसे हमने बताया था अभी, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन इज मैग्नेटिक फोर्स, ये आपका वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल साइन थीटा, ये वेलोसिटी था, ये थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड टेक अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स, थंब मैग्नेटिक फोर्स, और ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल जो परपेंडिकुलर है v sin थीटा, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दिस कंपोनेंट इज नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये यानी कि इसलिए हम v sin थीटा लेते हैं, क्योंकि फ्लेमिंग ने बताया था ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड होगा, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फोर्स हो गया, और आपका ये जेड एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये जेड, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यदि मैग्नेटिक फील्ड आपने सेटअप कर दिया अलोंग एक्स एक्सिस, तो चार्ज पार्टिकल जो मूव करेगा उसका कौन सा कंपोनेंट, v sin थीटा, वो जेड एक्सिस में होगा। ये आपके पास दे आर राइट एंगल टू ईच अदर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड central finger that represent the velocity of the moving charge particle, and they are right angle to each other. thumb, आपके लेफ्ट हैंड का थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपकी लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगी किसका, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल, एंड थ्री फिंगर्स आर राइट एंगल टू ईच अदर, दैट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, थंब, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल, दे आर राइट एंगल टू ईच अदर। ये आपके पास था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दूसरा आता है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल,
राइट हैंड पाम रूल। ये आपके पास राइट हैंड पाम रूल है। इस राइट हैंड पाम रूल में ये आपकी पाम है, दैट रिप्रेजेंट द, यदि आप स्ट्रेच करते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका करंट, यानी सॉरी मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स, ये आपके पास रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ना सॉरी ये करंट, दिस वन इज करंट, ये आपका करंट, ये मैग्नेटिक फोर्स, और ये आपका फील्ड। थर्ड आता है सेकंड आर्टिकल, मोशन ऑफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। First is when initial velocity of charge particle parallel to magnetic field, when initial velocity of the charge particle is parallel to the magnetic field, we know that force experienced by the moving charge particle QVB sin theta, we have already discussed. So when initial velocity of the charge particle is parallel to the magnetic field, so initial velocity of the charge particle parallel to the magnetic field, that means theta is 0, F is 0. When the initial velocity of the charge particle parallel to the magnetic field, that means there is no magnetic force is exerted. What means? That means the velocity of the charge particle is when parallel to the magnetic field, the charge particle that moves in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field. यहाँ जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स पैरेलल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फोर्स पे पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड डजंट एक्सर्ट ए मैग्नेटिक फोर्स, कि मैग्नेटिक फोर्स को पे पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, एंड चार्ज पार्टिकल कंटिन्यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड आता है when the charge particle, when velocity of the charge particle is perpendicular to the magnetic field. Second, when velocity of the charge particle is perpendicular to the magnetic field. तो perpendicular to the magnetic field में means यहाँ पे हम, ये आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है in a uniform magnetic field perpendicular into plane of paper, inverse, cross का मतलब magnetic field perpendicular into plane of paper, inverse. Initial velocity of the charge particle perpendicular to the uniform magnetic field, ये uniform magnetic field लिया, cross represent perpendicular magnetic field perpendicular into plane of paper. अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहा है, सुनिए ध्यान से, ये आपका चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, दिस वन इज द चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v. सेकंड इज व्हेन चार्ज पार्टिकल इज दिस वेलोसिटी इज v, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये होगा, इसमें मैग्नेटिक फोर्स, जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे जाएगा विद वेलोसिटी v, ये अब या तो ये सर्कल कैसे बनाएगा चार्ज पार्टिकल, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज दिस विद वेलोसिटी एंड दिस। देखिए ध्यान से, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है,
फोर फिंगर इनवर्स है, ये वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो नाउ इस पॉइंट की बात करें, मैनीफील्ड परपेंडिकुलर इनटू प्लेन ऑफ पेपर, इट्स ओके। ये वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये परपेंडिकुलर मैनीफील्ड, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फोर्स। इस पॉइंट पे बात करें, ये आपके पास वेलोसिटी फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये मैनीफील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स, सेम एज यहाँ पे। यानी इफ ए velocity of the charge particle is perpendicular to the magnetic field, then it experience the two force. One is what? एक magnetic force है, तो magnetic force means that will be what? F QVB sin theta. Here charge particle is perpendicular, theta is 90, F is equal to QVB sin theta. That is the maximum force experienced by the moving charge particle. और ये जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैनीफील्ड में, और यूनिफॉर्म मैनीफील्ड कैसी है? परपेंडिकुलर इनटू प्लेन ऑफ पेपर, तो ये सर्कुलर पाथ बनाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सारा रेडियली इनवर्स है। ये मैग्नेटिक फोर्स मैंने अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के आपको बताया था कि सारे के सारे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो रेडियली इनवर्स है। ओके, यहाँ पे आपके पास है मैग्नेटिक फोर्स experienced by the moving charge particle when it is moving right angle to the uniform magnetic field, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा जो फोर्स होगा जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, दूसरा जो फोर्स होगा वो इस सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने के लिए कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे m है मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी v फॉर वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल, r इज द रेडियस, जो जिस चार्ज पार्टिकल ने ये रेडियस बनाया है, सर्कुलर पाथ बनाया है, उसका रेडियस r। तो देयर आर मेनी टू फोर्सेस आर एक्जेक्टेड when a charged particle is moving right angle to the uniform magnetic field. Now when we compare these two equations, mv square by r, that is equal to qvb. Okay, now from we can say कि velocity of the moving charge particle is what? b, यहाँ पे b cube by v से v कैंसिल and v is equal to होगा b q r by m. This is the velocity of the moving charge particle. Velocity of the moving positively charged particle and radii. The velocity is what? The velocity is b q r by m, and we can determine the velocity radii of the circular path. R is equal to mv upon bq. This is the radii of the circular path. This for velocity of the moving charge particle or radii of the circular path. And now from these two expressions we can determine the time period of revolution of the moving charge particle. तो time period of revolution of the moving charge particle क्या बनेगा? 2 pi r by v. Now here put the value of 2 pi r by v. v क्या बन गया? b q r by m, और that is 2 pi m by b q. That what? कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द मूविंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल 1/t, और दैट इज बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। तो सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। वेलोसिटी के लिए हमने बताया बी क्यू आर बाई एम, वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एंड सेकंड इज व्हाट, हमने आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एम वी अपॉन बी क्यू। और थर्ड हमने आपके पास बताया टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई बी क्यू, और हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल बी क्यू बाई 2 पाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यदि कोई चार्ज पार्टिकल राइट एंगल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी? परपेंडिकुलर इनटू प्लेन ऑफ पेपर। तो चार्ज पार्टिकल में दो सिचुएशन, एक तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक उसका अपने जिस फोर्स से एक और फोर्स जो नेसेसरी रिक्वायर्ड होगा टू मूव द चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, दैट फोर्स इज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। और मेन पॉइंट टू बी नोटेड, यदि आपके पास जो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि मूव करता है, रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ में बनता है, तो सर्कुलर पाथ में कभी भी वर्क डन नहीं होता। तो दैट मीन्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट,
that can be noted, that can be asked in your competitive exam, कि when a charged particle is moving in a uniform magnetic field, then the kinetic energy and speed is increased. Then you have to write कि there is no change in kinetic energy and speed when a charged particle is moving in a uniform magnetic field. This is the most important point in this topic. तो हम पढ़ रहे थे मोशन ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो मोशन ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल में पहले हमने बताया जब इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, फिर इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, थर्ड है व्हेन इनिशियल वेलोसिटी v makes an arbitrary angle with magnetic field। अब आपके पास ये आर्बिट्रेरी, ये आपके पास चार्ज पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से by making an angle theta, तो now here ये पाथ बनाएगा, एलिप्टिकल पाथ बनेगा। Now here this velocity component is resolved into v cos theta and one is v sin theta. So now here the component of v cos theta is the direction of magnetic field. The component of v cos theta, now velocity of the moving charge particle is resolved into two component now. ये है when a charge particle having charge q mass m is entered in the uniform magnetic field, then the velocity of this charge particle is resolved into two component. One is v cos theta, v sin theta. The component of v cos theta that is parallel to the magnetic field. और ये हम फर्स्ट केस में डिस्कस कर चुके हैं, when the velocity of the charged particle in the same direction of magnetic field, that means there is no magnetic force is exerted and the charged particle is moving in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field के अंदर ही मूव करेगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, स्ट्रेट पाथ में जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा जो कंपोनेंट है आपके पास, ये आपके पास है v sin थीटा। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट है v sin थीटा, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स की मैं बात करूं, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, v sin थीटा। अब ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर होगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल का कौन सा कंपोनेंट, v sin थीटा। और यहाँ पे जब f इज इक्वल टू आप देखेंगे क्यू वी बी फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, आप ये वेलोसिटी का विच कंपोनेंट वी विल टेक, क्यू वी साइन थीटा, दैट इज बी। ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स का ये कंपोनेंट लेंगे आप कि v परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको हम पैरेलल कंपोनेंट कह सकते हैं, और ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने ये लिया। ओके, और F इज इक्वल टू, अब जब हम बात करेंगे, अब ये मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट है। अब यहाँ पे जो आपका रेडियस जो मैंने अभी बताया था कंपोनेंट, वो कौन सा कंपोनेंट था, विच कंपोनेंट। अब यहाँ पे जो रेडियस जो आप लेंगे, तो रेडियस का कौन सा कंपोनेंट लेंगे आप, रेडियस इक्वल टू आपने क्या लेता, एम वी बाई बी क्यू। अब यहाँ रेडियस का जो कंपोनेंट बनेगा वो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, ये आपके पास बन गया v sin थीटा बाई बी क्यू। ये आपका रेडियाई बन गया, रेडियाई ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल। दिस वन इज द रेडियाई ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल। ओके, अब यहाँ पे अब आपने टाइम पीरियड लेना है, तो टाइम पीरियड और रिलेशंस क्या होगा, 2 पाई आर बाई बी क्यू, यानी कि 2 पाई आर बाई बी। अब 2 पाई आर इज व्हाट, आर की वैल्यू पुट कीजिए, बी क्यू बाई 2 पाई आर इज इक्वल टू
एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू। और वेलोसिटी का विच कंपोनेंट ना, वेलोसिटी का यहाँ पे कंपोनेंट है वी साइन थीटा, तो वी साइन थीटा वी साइन थीटा टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई बी क्यू। ये टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशंस। ये आपके पास रेडियस होगा सर्कुलर पाथ, यहाँ पे है आपके पास टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशंस। इज इट राइट? अब यहाँ पे जो ये इक्वेशन है आर इक्वल टू, ये हमने पहले भी ड्राइव की थी। यदि आप इस इक्वेशन को आप ऐसे भी ड्राइव करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट मूव करेगा, एन, यहाँ पे बन जाएगा वी स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और रेडियस आपके पास आर। अब अगेन आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास वही इक्वेशन बनेगी। कौन सी बन जाएगी कि आपके पास आर इक्वल क्या बनेगा, व्हेन वी कंपेयर, तो वेलोसिटी क्या बनेगी, यहाँ पे वेलोसिटी बन जाएगा बी क्यू, व्हेन वी कंपेयर वेलोसिटी बन जाएगा बी क्यू, यहाँ पे आपके पास आर, और यहाँ पे आपके पास वी, यहाँ पे एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आर क्यू वी साइन थीटा बी। ओके, यहां से एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपके पास रेडियाई का जो कंपोनेंट बनेगा, तो रेडियाई किसके इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पे आर इज इक्वल टू बन गया एम वी, ये साइन थीटा अपॉन ये होगा बी क्यू, ये रेडियाई। तो यहाँ पे रेडियाई की वैल्यू पुट कर दी। वेलोसिटी का कौन विच कंपोनेंट, वी साइन थीटा, ये टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशंस हो गया। जब पार्टिकल किसी आर्बिट्रेरी एंगल से आर्बिट्रेरी एंगल बनाता है, when the particle makes an arbitrary angle with a uniform magnetic field. Now here pitch क्या होता है, the linear distance covered by the charged particle in the direction of magnetic field, linear distance covered by the charged particle in the direction of magnetic field। अब linear distance pitch, और यहाँ पे जो pitch आएगी तो linear distance, अब distance होता है velocity, अब velocity which component, horizontal component v cos theta into में time period of revolutions क्या बन गया, into में t 2 pi m by bq, that is the pitch, that is the pitch। देखिए आपके पास जो मोशन ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसमें 3 केसेस हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करता है, प्लेस होता है, तो क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है चार्ज पार्टिकल का। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स दो कंडीशन में आपके पास, यदि चार्ज पार्टिकल यदि स्टेशनरी है तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, नो मैग्नेटिक फोर्स। और इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यदि पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। ओके, और यदि वो एंटी पैरेलल भी मूव करता है तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, यानी कि देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल। क्या क्या कंडीशन हुआ, इफ द चार्ज पार्टिकल इज इन स्टेशनरी देन देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द चार्ज पार्टिकल। इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा तो थीटा आइदर 0 और 180, इन दैट केस देयर इज आल्सो नो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, मींस चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा, एक स्ट्रेट पाथ में जाएगा चार्ज पार्टिकल। यदि वेलोसिटी 0 है, स्टेशनरी है, तो वो मूव ही नहीं करेगा। और मैग्नेटिक फोर्स यदि थीटा 0 180 में कंडीशन है कि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा और चार्ज पार्टिकल में भी मूव इन ए स्ट्रेट पाथ। फिर मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर, when the charge particles is moving perpendicular to the plane of paper in magnetic field और magnetic field भी inverse, उस केस के अंदर दो फोर्स लगेंगे, एक आपके पास मैग्नेटिक फोर्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स मैंने आपको बताया राइट एंगल क्यू वी बी, और दूसरा आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दोनों इक्वेशन को याद रखिए और इनके कारण वेलोसिटी भी निकाल दिया था, रेडियस भी निकाल दिया था, और टाइम पीरियड भी और फ्रीक्वेंसी भी। तो ये सब हमारे पास था कि मोशन ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके पास आता है लॉरेंस फोर्स। देखिए लॉरेंस फोर्स क्या होता है, लॉरेंस फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ
इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स QE कोई भी, और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स बाई चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स अभी मैंने बताया था, मैग्नेटिक फोर्स का क्यू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर सीधा लिख सकते हैं मूविंग चार्ज के लिए। तो लोरेंस फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू E वेक्टर प्लस क्यू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, दैट इज द लोरेंस फोर्स। ये आपके पास लोरेंस फोर्स है, कोई भी डिफ्लेक्ट देता है चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमने आज आपको डिस्कस किया है 2 आर्टिकल्स। फर्स्ट आर्टिकल में दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बताया आपको। दूसरा मैंने आपको बताया है कि मोशन ऑफ द मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मोशन ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में 3 केसेस डिस्कस किए हैं। When the charge particles moving in a uniform magnetic field with the initial velocity that is parallel to the magnetic field, फिर initial velocity perpendicular to the magnetic field, फिर थर्ड केस में initial velocity makes an angle theta with uniform magnetic field। और ये दोनों के दोनों आप आर्टिकल अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई डाउट्स हो यू कैन आस्क। ओके।